We are talking about physical quantities. The question arises, what is physical quantity? Physical quantities are those who depend on natural phenomena which are related to physics. Division of physical quantities. These are two types. First, fundamental quantities, and second are derived quantities. What are fundamental quantities? Which are basic quantities that are called fundamental quantities. For example, mass, length and time. And what are derived quantities? Which are defined in terms of fundamental quantities that are called derived quantities. Example, velocity, force, area and etc. Next topic is classes of physical quantities. There are basic two classes. First is scalar and second is vector. What are scalar quantities and what are vector quantities? Scalar quantities are those which depend only on magnitude, that are called scalar quantities. For example, area, volume and etc. And what are vector quantities? Vector quantities are those which both depend on magnitude and direction. For example, velocity, force, torque and etc. Now we are talking about what is measuring process. Measuring process is basically a comparison. Measuring process, basically it is a comparison. For example, we say that a man have 75 kg weight. So that means 75 times of unit of mass. We know that unit of mass is kilogram, that is 75 kg. Now we are talking about the unit of length, unit of mass and unit of time. First topic is unit of length. The basic unit of length is meter. Second is unit of mass. Basic unit of mass is kilogram. And third one is unit of time. The basic unit of time is second. First topic था हमारा unit of length. इसका सब हेड है macro, in which we take large lengths, large distance. इसमें फर्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर. Second one is light year. 1 light year equals to velocity of light into 1 year. We know velocity of light is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and 1 year equals to 365 days, and 1 day equals to 24 hours, 1 hour equals to 60 minutes, and 1 minute equals to 60 seconds. So 1 light year becomes 3 into 10 to the power 8 multiplied by 365 into 24 into 60 and into 60 second. So now
1 light year equals to 9.456 into 10 to the power 15 meter. And last one is 1 parasec. 1 parasec equals to theta upon 1 second. So now its value becomes 3.1 into 10 to the power 16 meter. Next topic is relation between astronomical unit, light year and parasec. First, relation between light year and astronomical unit. 1 light year on 1 astronomical unit. One light year equals to 6.1 into 10 to the power 4 astronomical unit. Next is second is relation between parasec and light year. 1 parasec upon 1 light year equals to 3.1 into 10 to the power 16 upon 9.456 into 10 to the power 15 equals to 3.26. 1 parasec equals to 3.26 light year. Next topic is dimension of fundamental quantities. हमने पहले भी डिस्कस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं. फर्स्ट होती है लेंथ, सेकेंड इज मास, टाइम, इंटेंसिटी, करंट, सब्सटेंस. लेंथ की डायमेंशन होती है L, मास की M, टाइम की T, इंटेंसिटी की कैंडेला, करंट की A, सब्सटेंस की मोल, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की केल्विन. 7 क्वांटिटीज़ होती हैं और जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस को हम इन सिंबल्स से शो करते हैं. डायमेंशंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे फर्स्ट ले लो एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हमने पहले डिसाइड किया था कि जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसको हम L से शो करेंगे. तो लेंथ को L डायमेंशन से, ब्रेथ भी हमारी लेंथ ही होती है, उसको भी L डायमेंशन से. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L स्क्वायर. सेकेंड लेते हैं हम अगर वॉल्यूम, क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच. तो उसकी डायमेंशन क्या हुई? L इंटू एल इंटू एल. क्या हुआ? L क्यूब. फिर थर्ड स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम? L से. टाइम को T से. तो डायमेंशनली फॉर्मूला क्या हो गया? LT माइनस 1. फोर्थ वेलोसिटी. वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट को भी हम L से ही शो करते हैं एंड अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशनली फॉर्मूला इक्वल होता है. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हमने अभी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया? LT माइनस 1 अपॉन
टाइम, तो इसका डायमेंशनली फॉर्मूला क्या हो गया, LT - 2। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को m से शो करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया, LT - 2, तो फोर्स क्या हो गया, MLT - 2। नेक्स्ट इज एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो K इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, LT - 1, LT - 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, MLT - 2। फोर्स और एनर्जी दोनों की डायमेंशंस इक्वल नहीं है, ML2T - 2 ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। इसको शो करते हैं हम स्मॉल पी से। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू LT - 1, MLT - 1। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स की डायमेंशन क्या थी, MLT - 2, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की क्या होती है, L। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ML2T - 2। वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशंस हमारी इक्वल होती है। इसकी भी क्या है, ML2T - 2, और एनर्जी की भी क्या है, ML2T - 2। नेक्स्ट इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ML2T - 2 अपॉन T। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, ML2T - 1। नेक्स्ट इज टेंशन। टेंशन हमारी किसके इक्वल होती है, फोर्स के। फोर्स की डायमेंशन क्या थी हमारी, MLT - 2, तो टेंशन की भी सेम डायमेंशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको शो करते हैं हम कैपिटल I से। फॉर्मूला होता है मास इंटू R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, M इंटू L स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो गई, ML स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्मॉल l अपॉन R। L भी लेंथ है हमारी और R भी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन लेस हो क्योंकि 0 आएगी। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज स्मॉल ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। डायमेंशन लेस है ये एंगल, तो इट मीन्स 1 अपॉन टी। तो फॉर्मूला क्या बना, T - 1। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, तो K चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट को A से और टाइम को T से, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, AT। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जितने भी फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले के थ्रू हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी प्रॉब्लम्स पे कि इस पे डिपेंड प्रॉब्लम्स किस टाइप की आती हैं। फर्स्ट आता है कन्वर्जन फॉर कन्वर्ट वन सिस्टम
into another system. ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं. सपोज करो हमें कोई प्रॉब्लम गिवन है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है हमें डाइन में. वी हैव टू नो दैट कि वी कन्वर्ट एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम. ओके, यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारी, MLT -2. अगर यहाँ पे हम SI सिस्टम में M1 देखें, M1 इक्वल्स टू 1 kg, L1 इक्वल्स टू 1 मीटर एंड T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड. कन्वर्ट किस सिस्टम में करना है हमें, CGS में. M2 इक्वल्स टू कन्वर्ट करना है ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में एंड T2 1 सेकेंड में. और स्मॉल n1 क्या है हमारा, 1 न्यूटन. n2 है डाइन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितने डाइन्स होते हैं इसमें. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर c. a b c बेसिकली ये पावर्स होती हैं हमारी, a b एंड c. यहाँ पे स्मॉल a इक्वल्स टू है हमारा 1, b इक्वल्स टू है 1 एंड c इक्वल्स टू क्या है हमारा -2. फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज. n1 की वैल्यू क्या थी, 1 न्यूटन, तो 1. m1 की वैल्यू क्या थी, 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम. L1 की वैल्यू थी 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. T1 की वैल्यू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड. इनकी पावर a b c की वैल्यू क्या थी, a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर -2. We know that 1 kg equals to 1000 gram upon 1 gram. इसको हमें CGS में चेंज करना है, तो हमने डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया है. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2. n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3, यहाँ से 10 की पावर 3, नेक्स्ट उसमें 10 की पावर 2 इंटू 1, तो n2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 की पावर 5. यहाँ पे हमें n2 कैलकुलेट करना था, तो यहाँ तुम इजीली फिल कर सकते हो 10 टू द पावर 5. इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आया है वो ये आया है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में. डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल्स टू ML2T -2. तो अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 1, B की 2 एंड C की -2. SI सिस्टम में M1 इक्वल्स टू कितना है हमारा 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर एंड T1 1 सेकेंड. CGS सिस्टम में M2 इक्वल्स टू 1 ग्राम, L2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड. N1 हमारा 1 जूल एंड N2 हमें कैलकुलेट करना है. तो सेम वही फॉर्मूला हमारा n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर c. n2 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू हमारी 1 जूल है, m1 की वैल्यू हमारी 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम,
L1 की वैल्यू है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इसकी पावर 2 और लास्ट वन इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। तो N2 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। N2 इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो N2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। स्मॉल टी डिपेंड कर रहा है एम, एल और जी में। वेयर स्मॉल टी इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एम मास, एल लेंथ एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्टली हम इनकी पावर्स ले लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल जी, स्मॉल सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया स्मॉल के, स्मॉल एम की पावर ए, एल की बी एंड जी की सी। यूजिंग डायमेंशन, स्मॉल टी की टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, के कांस्टेंट है इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे हम। स्मॉल एम की कैपिटल एम होती है, लेंथ की एल होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एल टी -2। अब हमें कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे m और l को भी इंक्लूड कर लेंगे। m की पावर 0, l की 0 एंड t की पावर 1। m की पावर a, l की पावर, राइट हैंड साइड में जितने भी l हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, l की पावर b एंड l की पावर c, तो इट मीन्स b प्लस c, t की पावर -2c। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के जितने भी कोफिशिएंट्स थे उन्हें हम इक्वेट कर देंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, m की पावर a और m की पावर 0, तो इट मीन्स जब इक्वेट करेंगे तो a की पावर कितनी आ गई हमारी 0। नेक्स्ट इज b प्लस c, l की पावर b प्लस c इक्वल्स टू 0, b प्लस c इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज t की पावर -2c इक्वल्स टू t की पावर -2c इक्वल्स टू t की पावर 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। c की वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, b माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारी हाफ। अब हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम जो भी हमारा बेसिक फॉर्मूला था इसको इक्वेशन a डाल देते हैं, इक्वेशन a में पुट कर देंगे। पुट ऑल वैल्यूज इन a, k m l g। m की पावर 0, l की पावर हाफ एंड g की पावर -हाफ, तो k m तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि कोई भी इंटीजर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमारी। l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, तो t √l अपॉन g, k यहाँ पे कांस्टेंट है तो k की वैल्यू हमने 2 पाई रख दी, तो
2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।